Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. On a table such that kept on a table such that a length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. Total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? Okay, let's try this. Rough diagram of this will look like that. This is the chain and 2 meter की chain है. 60 centimeter part of this chain is hanging. ठीक है, तो इस 60 सेंटीमीटर पार्ट का जो मास है, उसका जो वेट है, वो इसको नीचे पुल कर रहा होगा. उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे. तो ये जो मास है m 60 सेंटीमीटर का है. 60 सेंटीमीटर पार्ट हैज़ मास स्मॉल m, whereas total mass is capital M, which is given to be 4 kg. Okay, so if nothing is specified in the question, we will assume that the chain is of uniform mass. So the mass of 0.6 meter will be equals to the total mass divided by total length into 0.6 meter. Mass of 0.6 meter. So total mass is 4 and total length is 2 meter into 0.6 meter. It will turn out to be 1.2 kilogram. So small m is 1.2 kg. That mass we have to move up on the table. So work done का formula होगा force into displacement. Now what is the displacement? So the common mistake will be we will take the displacement to be 60 centimeter. That will be wrong. Why that will be wrong? Because it will be true when the whole mass is here. Whole mass is as point mass here. We can consider that. But it is not the case. The mass is distributed throughout that 60 centimeter length. So we will have to take the center of mass point as the point mass. So this whole chain of 60 centimeter height has center of mass. If it is uniform, then at the midpoint of this midpoint पर इसका center of mass है, and that midpoint will be here at 30 centimeter height. So the whole mass is concentrated at 30 centimeter. So the distance or the height we have to cover is 30 centimeter, which is 0.3 meter. So the work done will be m into g into s. M is 1.2 kg, g की value 10 and height 0.3. So it will turn out to be 3.6 joules. Answer. Next question. A cluster of clouds at height of 1000 meter above the earth burst and enough rain fell to cover an area of this much with a depth of 2 centimeter. Okay, how much work would have been done in raising the water to the height of the clouds? Density of water is this, जो कि हमें पता होना चाहिए. ये मेंशन नहीं होगा तभी हमें याद रखना है. ये टू रिमेंबर, जिस पे मैंने टू रिमेंबर लिखा है वो आपको याद रखना है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. CGS में निकालेंगे तो 1 आएगा. आप ट्राई करना होमवर्क में, CGS में इसकी वैल्यू निकालना, 1 आएगा. दोनों वैल्यू याद रखनी है. ओके, सो द हाइट इज 1000 मीटर, हेंस 1 किलोमीटर. सो हाइट हमें दी हुई है टू बी 1000 मीटर. सो द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी mgh. और मास हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन मास के लिए हमें डेंसिटी दी हुई है, और मास का डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला होता है मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी इज रो या dw, जो भी सिंबल लेना चाहें, इनटू वॉल्यूम. V is volume into G into H. Okay, so density is 1000 and volume. Now it is about volume. तो वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू थिकनेस. एरिया इंटू थिकनेस. सपोज थिकनेस है x और g की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी हुई है और h की वैल्यू 1000 दी हुई है, और एरिया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जितने एरिया पे वाटर फॉल कर रहा है, दिस इज 10⁻⁶, और x का मतलब थिकनेस है, एंड दैट थिकनेस इज डेप्थ 2 सेंटीमीटर. सो इट विल बी 10⁻⁷
into 10 to the power 6 into 2 into 10 to the power minus 2. So it will be 2 into 10 to the power 11 joules. Answer 411. Okay, correct. Next, question number 4. A particle is acted upon by constant forces F1 and F2 displaced from point this to this. Find total work. Okay, so the work is equals to force and displacement dot product. So the net displacement will be final position minus initial position. Final position is b vector, initial position is a vector. We will write down it is in ijk form, यानी orthogonal unit vectors के form में. So it will b vector will be minus 3 I cap minus 4 j cap plus 2 k cap, and a vector will be minus 2 I cap minus j cap. So the net result will be minus 5 I cap minus 5 j cap plus 2 k cap. This is the displacement, and the net force will be the summation of vector summation of all the forces. So it will be 2i minus I यानी I cap minus 3j plus 2j minus j cap 4k minus 3k cap plus k cap. This is the force. Okay, let's put it into the formula of work done. So हमें डॉट प्रोडक्ट करना है यहाँ पे क्लियरली. डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 5 minus 1 into minus 5 plus 1 into 2. So minus 5 plus 5 plus 2. Hence the answer is 2 units. क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, then we will just write down units. If we don't know, if we are not given the units, the specific unit in the question, then we will write just units. Next question. A particle moves along x-axis from 0 to 5 under the influence of force this much. Okay, find the work done in the process. Same formula. Work done equals to force dot displacement that dot product, or because it is in x-axis, so the net displacement will be final position minus initial position. Final position minus initial position. Final position is 5 I cap minus initial position is 0 I cap. So the displacement is 5 I cap, and the force is so the magnitude is okay, so the force is given in the terms of x, so this is the variable force. So if the force is variable, we cannot place this formula, we have to use integration f dx. This formula dx is because the force is given in x direction. ठीक है, तो ये वेरिएबल फोर्स के लिए होता है. ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, वेयर द लिमिट ऑफ एक्स इज 0 to 5. ये इस तरह से होगा 0 to 5. फोर्स की वैल्यू 7 minus 2x plus 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स. सो यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको ब्रेक कर लेते हैं. ये होगा 7 dx minus 2x dx और प्लस 3x स्क्वायर dx. 0 to 5, 0 to 5 and 0 to 5. Okay, so work done is equals to 7 dx का इंटीग्रेशन x 0 to 5 minus 2 x का x स्क्वायर अपॉन 2 0 to 5 प्लस 3 x क्यूब का x क्यूब अपॉन 3 0 to 5. 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट. आगे इसे सॉल्व करो और चेक करो आंसर क्या आ रहा है. आगे खुद सॉल्व करना है. और हर क्वेश्चन को, जैसे मैंने पहले बोला है कई बार, हर क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आगे आया तो वीडियो को पॉज करके पहले से अपने आप ट्राई करो. ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हो उसे. अगर अपने आप ट्राई कर लोगे तो आपको उससे, अगर मैं जो बता रहा हूँ आप उसको सिर्फ देखे जा रहे हो और नोट करे जा रहे हो, उससे कई गुना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसको खुद ट्राई करो. और ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ट्राई, इसलिए इसको खुद करने की कोशिश करो. यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 मीटर टू x इक्वल्स टू 3 मीटर फ्रॉम द ग्राफ शोन हेयर. तो ग्राफ ये दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. ग्राफ इज दिस. This is 40 Newton point, this is 60 Newton point, this is 2 meter, this is 3 meter,
this is of course distance in x direction in meters, this is force in newtons. ओके तो हमें यहाँ पे इस ग्राफ का 2 से 3 मीटर के लिए निकालना है यहाँ पे वर्क डन. तो अगर आप फॉर्मूला वर्क डन का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एज वी नो, और ग्राफ में प्रोडक्ट का मतलब होता है एरिया. सो वी हैव टू कैलकुलेट एरिया. द एरिया विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ओके तो कौन सा एरिया में फाइंड आउट करना है? 2 मीटर से 3 मीटर के बीच का, यानी दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट. ओके अब इस एरिया को निकालने के लिए आप इसके 2 पार्ट कर सकते हो, ये ट्राइंगल वाला पार्ट और नीचे रेक्टेंगल वाला पार्ट. ये मैं 1 बोल देता हूँ, ये 2. सो एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2. एरिया ऑफ 1 का मतलब ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट. बेस है यहाँ पे 2 से लेके 3 यानी 3 माइनस 2 यानी 1, और हाइट इज़ दिस 40 से लेके 60 यानी 60 माइनस 40 20, प्लस एरिया ऑफ 2 यानी रेक्टेंगल का एरिया. रेक्टेंगल का एरिया इज सिंपली 1 साइड इंटू सेकेंड साइड. तो 1 साइड इज दिस 3 माइनस 2 1 इंटू सेकेंड साइड इज 40 माइनस 0 40. सो आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी turn out to be 50 joules answer. Okay, next question. A body moves from point A to B under the action of a force varying in magnitude as shown. Obtain the work done. Force is expressed as newtons and displacement is in meters. तो ये ग्राफ दिया हुआ है, हमें नेट वर्क डन निकालना है इसका. तो फिर से वही बात, हमें इसका सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना होगा, इन सारे सेक्शंस का एरिया निकालना है. और जो डाउन वाला पार्ट आएगा उसका एरिया ऑब्वियसली नेगेटिव में लिया जाएगा. तो एरिया इसका फाइंड आउट करना है, इसको आप होमवर्क में करो. सेम वैसे ही क्वेश्चन है, डिफरेंट पार्ट्स के एरिया लेके सबको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालो. इसका आंसर आना चाहिए 22.5 जूल्स. ये आपको प्रूव करना है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फोर्स F vector equals to 2x j cap Newton acts on in a region where a particle moves anticlockwise in a square loop of 2 meter in xy plane as shown in figure. Calculate the total amount of work done in if this force a conservative force or non-conservative force. Okay, let's try. तो पहले तो डायग्राम देखते हैं. इसका डायग्राम ये है. ओके ये साइड हैं इसमें, ये 4 पॉइंट्स हैं. इसके वर्टिसेस A B C एंड D. A ऑरिजिन है, इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0. तो B के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,0 बिकॉज द लेंथ इज 2. C के कोऑर्डिनेट होंगे 2,2 एंड D के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,2. और साइकिल इज गोइंग लाइक दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड फोर्स इज F vector is 2x j cap. Okay, so for work done का फॉर्मूला हमें पता है, F डॉट x होता है, और क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल फोर्स दिया है तो इंटीग्रेशन F डॉट डी एक्स लगेगा. सो इंटीग्रेशन F डॉट डी एक्स. ओके इसको हम लगाएंगे, और फोर्स यहाँ पे j कैप की डायरेक्शन में. इसका मतलब आई कैप की डायरेक्शन में वर्क डन 0 आएगा. चलो लेकिन सारा निकाल लेते हैं एक करके. तो टोटल वर्क डन के 4 स्टेप्स होंगे. एक A टू B, फर्स्ट A टू B के लिए, B टू C के लिए, देन फिर C टू D के लिए, एंड देन D टू A के लिए. अब इसमें A टू B के लिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन, हाँ A टू B के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन में है. तो A टू B वाला ये वाई आएगा, और B टू C में dx वाला पोर्शन भी है, dy वाला पोर्शन भी है. तो dy वाला यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो dx वाला लेंगे सिर्फ, सॉरी A टू B नहीं, A टू B x डायरेक्शन में, हाँ A टू B x डायरेक्शन में, तो ये x आएगा. B टू C x और y दोनों डायरेक्शन में, हम x वाला लेंगे क्योंकि y वाला 0 हो जाएगा. सॉरी मिस्टेक हो रही है. ओके इसको इस तरह से करते हैं. सो
So for A to B, the displacement is B minus A, B vector minus A vector. So this is 2 I cap minus 0 j cap minus 0 I cap minus 0 j cap, यानी 2 I cap. और for B to C, displacement is C vector minus B vector. तो C vector is 2 I cap plus 2 j cap और ये B cap minus 2 I cap, तो ये बचा 2 j cap. ओके, और C to D, it will be D vector minus C vector. D vector is 2 j cap or this is 2 I cap minus 2 j cap, so it will become minus 2 I cap. And D to A finally, D vector minus A vector, so 2 j cap, सिर्फ 2 j cap आएगा. ओके, और फोर्स हमें दिया हुआ है 2x j cap. तो इनके लिए इंडिविजुअली हम वर्क डन निकालते हैं. पहले किसके लिए वर्क डन आएगा, W1 इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट इसका 2x j cap और 2 I cap, तो वर्क डन हो गया 0. वो I cap है और ये j cap है. एंड W2, और W2, तो W2 है 2 j cap, तो 2 j cap और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा. 4 इंटू एक्स, और x की लिमिट क्या है 0 से लेके 2 तक, तो x की वैल्यू 2 लगाएंगे. वो अभी 2 लगा देते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 8. ओके, 8 जूल. नाउ W3 के लिए क्या है हमारे पास, ये है minus 2 I cap और ये j cap है फोर्स, तो ये भी 0 हो जाएगा. एंड फॉर W4 इट इज़ 2 j cap एंड इट इज़ 2x, यानी 4x x की वैल्यू 2, तो इट इज़ 8 जूल्स. ओके, सो इसका मतलब हुआ ओके, नहीं, अभी भी एक मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, वो हमने गलत कर दिया. ओके, ये नहीं होगा. बट ये W1 और W3 वाला पार्ट सही है, क्योंकि W1 और W3 में इंटीग्रेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज I और J 90 डिग्री पर हैं, तो आंसर डेफिनेटली 0 ही देंगे. लेकिन जो W2 और W3 वाला पोर्शन है उसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वेरिएबल फोर्स है उसकी वजह से. तो इसके लिए F की वैल्यू 2x और ये dx, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी x स्क्वायर W आ जाएगा x स्क्वायर, और x की वैल्यू है 2, x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से W इक्वल्स टू हो गया 4. ये W2 की वैल्यू आएगी और यही W4 की वैल्यू आएगी 4. ओके, क्योंकि दोनों केसेस में सेम रिजल्ट है हमारे पास, 2x dx सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी 2 है दोनों में, तो आंसर 4 आ जाएगा दोनों केसेस के लिए. तो ये सारे वर्क डन आ गए, सबको ऐड कर देते हैं, हमारे पास फाइनल वर्क डन आ जाएगा W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. हैंस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 यानी 8 जूल्स. ये हमारे वर्क डन का आंसर हो गया फाइनल. एंड नाउ अब हमें चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है. तो फोर्स कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव तब होता है जब अगर पार्टिकल जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उस पॉइंट पर आ जाए वापस, यानी एक लूप में मूव करे और उसका वर्क डन 0 आए. तो यहाँ पे ये पार्टिकल लूप में मूव कर रहा है, ऑब्वियसली ये क्लोज लूप है, और वर्क डन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, वर्क डन यहाँ पे 8 जूल आ रहा है. दैट मीन्स दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. सेकेंड आंसर इज नॉन कंजर्वेटिव. Non-conservative because the net work done of closed loop is not 0. Okay, next question. Displacement x of a particle mass 5 gram moving in one dimension under the action of constant force is related to the time of time equation. This x in meter, t in second. Find displacement of the particle when its velocity is 0 and work done by the force in first 6 seconds. Okay, let's try. ठीक है, तो पहले तो हमें निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी 0 पर डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी उसके लिए, तो हम इस इक्वेशन को अंडर x इक्वल्स टू t-3 लिख देते हैं. यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा t-3 होल स्क्वायर्ड, दैट मीन्स t स्क्वायर प्लस 9 - 6t, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, इट विल गिव अस वेलोसिटी.
एंड इट विल बी 2t प्लस 0 माइनस 6 एंड वेलोसिटी 0 बोली हुई है क्वेश्चन में, वेलोसिटी 0 लगा देते हैं. इट विल गिव अस अ टाइम दैट इज 6/2 यानी 3 सेकेंड. 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 होगी और 3 सेकेंड पे हमें वर्क डन डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो इस वैल्यू को हम प्लेस कर देंगे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में. दिस विल गिव अस √x इक्वल्स टू 3 - 3 0 hence x इक्वल्स टू 0. सो द पार्टिकल विल बी एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन यानी डिस्प्लेसमेंट 0 पर होगा व्हेन द वेलोसिटी इज 0. अब इसके बाद हम निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकेंड. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स. ओके ठीक है. इन द फर्स्ट सेक्शन नेट डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 6 सेकेंड. ठीक है, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इसका. फर्स्ट 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो फर्स्ट 6 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला. तो ये पहले 3 सेकेंड में तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. फिर दोबारा ये 0 से स्टार्ट करेगा तो दोबारा 3 सेकेंड और लगेंगे. तो क्या होगा, फर्स्ट 3 सेकेंड की इसकी साइकिल बन रही है. इन फर्स्ट 3 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज 0. इन नेक्स्ट 3 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो कम आउट टू बी 0. ऑरिजिन से स्टार्ट किया, पहले 3 सेकंड में चला, 0 पे वापस आ गया. फिर दोबारा से 3 सेकंड में दोबारा 0 पे वापस आ जाएगा. यानी नेट डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड्स इज 0. एंड बिकॉज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन विल ऑल्सो बी 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ साइक्लिस्ट कम टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर. Skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the cycle due to the road is 200 Newton. एंड इज़ डायरेक्टली अपोज्ड टू द मोशन यानी फ्रिक्शन वाला फोर्स है. हाउ मच वर्क डन द रोड डू ऑन द साइकिल एंड हाउ मच वर्क डन द साइकिल डू ऑन द रोड. ओके, तो पहली बात तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा. यानी इसका अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे का नेगेटिव आएगा, बिकॉज ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस शो कर रहे हैं. रोड साइकिल पे जो फोर्स लगाएगा उतना ही साइकिल रोड पे लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. तो वर्क डन भी सेम आएगा विद अपोजिट साइंस. तो पहले हम ए पार्ट निकालते हैं इसका. रोड डू ऑन साइकिल. तो रोड वर्क डन, रोड कितना वर्क कर रहा है साइकिल पर. ये साइकिल, ये रोड. सो फोर्स ऑन द ड्यूट. ठीक है, ओके. तो साइकिल इज़ मूविंग फॉरवर्ड और ये इसको अपोज कर रहा है फोर्स. तो ये फोर्स पीछे की तरफ होगा. फोर्स की वैल्यू है 200 न्यूटन और 10 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट चला. 10 मीटर. ठीक है, तो ये हो गया 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट. 10 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट 200 इंटू. ओके ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला, हाँ, और थीटा यहाँ पे एंगल बन रहा है 180 डिग्री. सो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180. कॉस 180 इज माइनस, तो ये आ जाएगा -2000 जूल्स. और अगर ए का आंसर -2000 जूल्स आ रहा है तो बाय एक्शन रिएक्शन लॉजिक वी कैन से थीटा इक्वल्स टू 0 होगा सेकंड केस के लिए एंड द वर्क डन विल बी +2000 जूल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A woman pushes a trunk on railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 Newton against the distance and calculate the work done by the two forces over 2 meter. ओके, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है. पहले इसका ध्यान से पढ़ के डायग्राम बनाते हैं. इसका ग्राफ क्या बनेगा, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ. ओके, तो क्वेश्चन इज सेइंग वुमेन स्टार्ट्स टू पुश द ट्रंक ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म. रफ सरफेस है हमारे पास. सो और शी अप्लाइज 100 न्यूटन फोर्स. तो दिस साइड इज फोर्स, वाई एक्सिस फोर्स. तो पहले 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. तो 100 न्यूटन 10 मीटर तक रहा. तो ये 100 न्यूटन फोर्स इज अप टू 10 मीटर. ये 10 मीटर और ये 100 न्यूटन. इसके बाद शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली यानी स्ट्रेट लाइन
टू 50 न्यूटन। तो ये 100 से 50 हो जाएगा इन स्ट्रेट लाइन। 50 न्यूटन हो गया स्ट्रेट लाइन बिकॉज द लीनियर वेरिएशन। और द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 मीटर, यानी यहाँ तक डिस्टेंस आई 20 मीटर। ओके ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स इज 50 न्यूटन, तो वो अपोजिट साइड में लगेगा, यानी ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा दिस -50 न्यूटन। ओके ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है मीटर्स में, और यहाँ पर फोर्स, पॉजिटिव फोर्स ऑब्वियसली जो अप्लाइड फोर्स है बाय वुमेन वो है, और नीचे वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है। तो वर्क डन हमें निकालना है दोनों फोर्सेस की वजह से। तो वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से वर्क डन निकालने के लिए हमें सिंपली एरिया निकालना होता है। तो बाय वुमेन वर्क डन निकालने के लिए ऊपर वाला एरिया निकालेंगे। इसके 3 पोर्शंस हो सकते हैं ऐसे, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। तो नेट वर्क डन बाय वुमेन इक्वल्स टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। सो एरिया ऑफ 1 आएगा, ये रेक्टेंगुलर है तो साइड इंटू साइड यानी 100 इंटू 10, प्लस एरिया इंटू एरिया ऑफ 2, ये ट्राइंगल पार्ट है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस होगा 20 - 10, 10 इंटू हाइट होगी इसकी 50 से 100 यानी 100 - 50 दैट इज़ 50, प्लस A3 इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर पार्ट। इसमें वन साइड इज 20 - 10, 10 एंड अदर साइड इज 50। सो हमारे पास आ गया 1000 प्लस 250 प्लस 500, सो 1750 जूल्स, ये विमेन का वर्क डन पहला आंसर। एंड फॉर द वर्क डन बाय फ्रिक्शन it is clearly just a rectangular section, so the force is -50, the one side is -50 and the other side is 20, so that is 1000 joules। ये फ्रिक्शन का वर्क डन आ जाएगा। ओके ये दोनों आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shot traveling at the rate of 100 meter per second is just able to pierce a plank 4 centimeter thick. What velocity is required to just pierce the 9 centimeter thick portion? Okay. So इसको हम मोशन के लॉजिक से भी कर सकते हैं और एनर्जी के लॉजिक से भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ फॉर एनर्जी, तो हम एनर्जी के लॉजिक से करेंगे। सो यहाँ पर द एनर्जी इज़ यूज टू पेनिट्रेट द प्लैंक। तो वहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो प्लैंक के अंदर जाने में हुआ है। सो द वर्क डन इज़ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द प्लैंक इनटू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये पहले केस के लिए 1 हो गया। और ये एनर्जी आई कहाँ से? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द शॉट से आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस मास सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज है तो वेलोसिटी 1। सो हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ प्लैंक इंटू x1। तो सेकेंड केस के लिए हो जाएगा हाफ mv2 स्क्वायर इक्वल्स टू एफ प्लैंक इंटू x2। डिवाइड बोथ द इक्वेशंस। ये प्लैंक का फोर्स सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मास सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v1 हमें दिया हुआ है 100 स्क्वायर, v2 हमें निकालना है। x1 की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, x2 की वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर, विच वी हैव नॉट नीडेड टू कन्वर्ट बिकॉज दोनों सेंटीमीटर में तो वो सेम रहेगा। सो यहाँ से अंडर रूट लेते हैं पूरे पोर्शन का, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई v2 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3। सो ये 50 एंड v2 इक्वल्स टू 150 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 300%, बाय व्हाट परसेंटेज विल द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज? ओके सो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन ये होता है k इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। मास कांस्टेंट रहेगा, इफ़ नॉट मेंशन एनीथिंग स्पेसिफिक मास तो मास हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। दैट मीन्स k1 अपॉन k2 इज इक्वल्स टू p2 स्क्वायर अपॉन p1 स्क्वायर। यहाँ पे 1 इनिशियल और 2 फाइनल शो कर रहा है। 1 मीन्स इनिशियल, सेकेंड मीन्स फाइनल। सो द फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी k2 इज इंक्रीजेज बाय 300%। सो k1 प्लस 300% ऑफ k1। सो ये हो गया k1 प्लस 3k1 4k1। प्लेस कर देते हैं यहाँ पे।
So K1 upon 4K1 equals to P2 square upon P1 square. That means P2 is equals to P1 is equals to P1 by 2. P1 by 2. P2 is equals to K equals to P square. P2 square upon P1 square. ओके हाँ मिस्टेक हो गई, ये 2 और 1 नहीं है, 1 और 2 है नीचे, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में। ये 1 एंड 2, ये 1 एंड 2, सो P2 इज इक्वल्स टू 2P1, यानी डबल हो गया है। तो इसका मतलब परसेंटेज राइज कितना हुआ, 100%। आप चेंज इन परसेंटेज से भी आंसर निकाल सकते हो। डबल हुआ है तो इसका मतलब P1 इसमें ऐड हुआ, P1 का मतलब ओरिजिनल अमाउंट ऐड हुई, ओरिजिनल अमाउंट का मतलब 100%। अगर नहीं आता तो सिंपली इतना करो, जो भी ओरिजिनल अमाउंट है उसके सामने जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो 2 - 1 1 बचा, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ द परसेंटेज चेंज। अगर यहाँ पर सपोज 1.5 लिखा होता तो -1 ये 50% हो जाता। ऐसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज बाय 19%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सेम क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में कंप्लीट करो। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैच करने से 10% आना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल 5 किलोग्राम blocks are moving with same speed of 2 meter per second toward each other along a frictionless horizontal road. The 2 blocks collide, stick together and comes to rest. The work done by external forces and internal forces. Okay, तो हमें दिया हुआ यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स का मास सेम है 5 kg, मूविंग विथ सेम स्पीड, u भी दोनों का सेम है, u1 इक्वल्स टू u2 इक्वल्स टू नहीं टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों का u स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। सो इफ़ u1 इज़ पॉजिटिव देन u2 विल बी नेगेटिव। So u1 suppose positive है 2 मीटर पर सेकेंड, then u2 will be -2 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ऐसे। ओके सो यहाँ पे ठीक है, ये दोनों सिर्फ एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में कुछ बोला नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। दैट मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, हैंस द वर्क डन ड्यू टू नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 ऑल्सो। तो पहला आंसर तो ये हो गया। सेकंड, इंटरनल फोर्सेस की वजह से वर्क डन कितना होगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्योंकि यहाँ पे स्पीड और वर्क डन इन्वॉल्व है, तो वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के। इंटरनल वर्क डन होगा ऑब्वियसली क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन इज 0, सो W इंटरनल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है इसमें बोला हुआ है, उसके लिए स्टिक टुगेदर एंड कम्स टू रेस्ट। तो दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 0 क्योंकि दोनों रेस्ट में आ जाते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी ½ m1 u1 स्क्वायर प्लस ½ m2 u2 स्क्वायर। दैट मीन्स इट इज़ नेगेटिव, हाफ कॉमन आ गया, अंदर बचा, और दोनों सारी चीज़ें सेम है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस 2 m1 u1 स्क्वायर ऐसे कर देते हैं बिकॉज वेलोसिटी और दोनों ही सेम है। अब वेलोसिटी नेगेटिव थी लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव साइन से। 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस मास था आई थिंक 5 kg और स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, या -2 स्क्वायर करके 4 हो जाएगा बोथ केसेस, तो -20 जूल्स इसके सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रनिंग मैन हैज़ हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास। द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन हैज़ द सेम एनर्जी एज द बॉय। वॉट वर द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन एंड द बॉय। ओके वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करो पहले। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय हैड ऑफ हाफ हिज मास, तो द मास ऑफ मैन is suppose capital M and mass of boy is small m. That means capital M is equals to 2 into small m. फर्स्ट चीज़ ये, और रनिंग में और काइनेटिक एनर्जी हाफ है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इज km इज हाफ
ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय दैट इज़ के बी। ठीक है, एंड ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ कैपिटल एम और स्पीड ऑफ मैन स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ स्मॉल एम स्पीड ऑफ बॉय स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, एम इक्वल्स टू 2m है तो 2 इंटू एम वी एम स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एम से एम कैंसिल आउट, it will give us 4vm square equals to vb square, hence 2vm equals to vb, equation number 1. After that it is said that if the man speeds up by 1 meter per second, both of them have same energy. Okay, तो इसका मतलब हुआ km is equals to kb if vm is equals to vm plus 1. So ये half capital M vm plus 1 square इक्वल्स टू हाफ स्मॉल एम इंटू वी बी। वी बी में कोई चेंज नहीं आया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, कैपिटल एम इज 2 स्मॉल एम वी एम प्लस 1 होल स्क्वायर्ड इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं।